Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So you will have the test on Sunday from alternating current? Yes, sir. Okay. Today is Yes, Thursday. So Saturday I will tell you the time. सर क्लास के टाइम पे रख दीजिएगा. हाँ वही 12:15 पे रख देंगे. Yes, sir. The one want to enter in the class with name family account. So I don't know who is this. एक्सेप्ट करके पूछ लीजिए सर कौन है. अरे भैया एक्सेप्ट करने में खतरा हो जाता है भाई. कभी एक्सेप्ट कर लो तो गालियां दे के चला जाता है कोई. बहुत खतरा होता है इसमें. रहने दीजिए सर, ना एक्सेप्ट करिए. So we will not accept it. Unless we know, we cannot allow. So now we have done refraction of light. So light is going from one medium to another. This is your incident ray, I have told you. This is the normal. This angle is angle of incidence. And this bends towards the normal if going from rarer to denser. Now laws of refraction says that this incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane at the point of incidence. Point of incidence पे incident ray, refracted ray and normal all will be lying in the same plane. All will be lying in the same plane. Second law that is very important, that will be used very much, is Snell's law. That is sine of angle of incidence. Sine of angle of incidence bears a constant ratio with sine of angle of refraction. Sine of angle of incidence bears a constant ratio with sine of angle of refraction, that is sine I upon sine R. This is angle R, this is I, this is a constant, and this constant is known as mu or n से denote होगा. This is the refractive index of the medium. Refractive index of medium. This constant is refractive index of the medium. अंशिका त्रिवेदी. अंशिका त्रिवेदी. Ansika, are you listening me? Yes, sir. You were entering with family account name. इससे पहले. Yes. You have tried with some other phone also.
So today? Yes, today. No? No, sir. Okay. Then who else joined just now? Ansh Srivastava? Ansh Srivastava, are you listening me? Yes, sir. You were trying Yes, with sir. some other phone? No, sir. No. Okay. No, sir. So sine of angle of incidence bears a constant ratio with sine of angle of refraction. Sin I upon sin R जो है ये constant value होगी and this constant is known as refractive index. That will be denoted by mu or n. Now when you apply the Snell's law, Snell's law apply करना बहुत clear होना चाहिए. You have to follow the path of light. Light देखो एरो बताता है कहाँ से कहाँ जा रही है. Light is going from first medium to second. तो sin I अपॉन sin R 1 से 2 में जा रहा है तो 1 पहले लिखोगे म्यू के और 2 बाद में लिखोगे. बिल्कुल लाइट के पाथ को फॉलो करना है. आई और आर साइन आई अपॉन साइन आर 1 पहले और 2 बाद में. और इसको रीड करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first. सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. इसको रीड ऐसे किया जाएगा, जो राइट में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट. हेलो, हाँ जी. न, अच्छा अच्छा. अच्छा अच्छा, ठीक है. ठीक ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं. So am I audible? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो साइन आई अपॉन साइन आर इज 1 म्यू 2. लाइट के बिल्कुल पाथ को फॉलो कर लो, प्रॉब्लम नहीं होगी. साइन आई अपॉन साइन आर इज 1 म्यू 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. और ये जो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. थोड़ा जूम कर दीजिए. इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस विल बी नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ इट्स ओके. एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ अब जैसे मान लो ये डायग्राम तुम्हें गिवन है. This is denser medium and this is rarer medium. ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2 गिवन है. अब यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो लाइट के पाथ को फॉलो करो. ये लाइट ऐसे फिर ऐसे जा रही है
तो ये इंसिडेंस एंगल बनेगा और ये रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा। साइन फाई 1 अपॉन साइन फाई 2, और D से R में जा रहा है तो D पहले होगा, R बाद में होगा। और इसको रीड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। इसको रीड करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। यहां पे अप्लाई करो, ये फिगर गिवन है, दिस इज वाटर, दिस इज ग्लास, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ, जैसे अभी हमने अप्लाई किया तुम भी अप्लाई करके देखो। यू ऑल्सो अप्लाई इट इन द सेम वे and see what you are getting. So what's the second angle? 30 degree. चेक करो, लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, साइन 45 अपॉन साइन 30, ये इंसिडेंस हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। और वाटर से ग्लास में, तो वाटर पहले और ग्लास बाद में। क्या रीड करोगे इसको? इसको क्या रीड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, glass with respect to water, in this way। और ये सब जो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है W म्यू C की, तो साइन 45 1/√2 हो गया और साइन 30 1/2 हो गया। यू विल गेट इट। सो इन दिस वे यू विल बी अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ। बार बार इसको हम अप्लाई करेंगे। नाउ दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू 2, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज द रेशियो। स्विच ऑफ द माइक्रोफोन। Relative refractive index 2 with respect to 1, ratio of speed of light in first medium to the speed in second medium, left में speed upon right में speed. This is the speed of light in first medium, and this is the speed of light in second medium. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन लेफ्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन राइट मीडियम। अच्छा, मान लो कहीं पे ये लिखा है W म्यू जी, बताओ इसको स्पीड के टर्म में कैसे लिखोगे? अगर तुमसे बोले इसको, इट विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वाटर में स्पीड अपॉन ग्लास में स्पीड। अब ये बताओ किस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, वाटर में ज्यादा होगी कि ग्लास में? तो वाटर। जितना रेयर मीडियम होगा स्पीड विल बी मोर। तो वाटर में स्पीड ज्यादा, ग्लास में स्पीड कम, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, क्योंकि वाटर में स्पीड ज्यादा होगी और ग्लास में कम। ग्लास इज डेंसर कंपेयर टू वाटर। अच्छा चलो, यहां कहीं ये लिखा है R म्यू डी लिखा हुआ है, कहीं स्नेल्स लॉ लगाया तुमने तो R म्यू डी आया। क्या पढ़ोगे इसको? पहले रीड करो क्या पढ़ोगे, क्योंकि जब पढ़ पाओगे तो लिख पाओगे। Refractive index of denser medium with respect to rarer medium. Yes, this is refractive index of denser with respect to rarer। और इसको स्पीड में कैसे लिखोगे? Speed of light in rarer medium with respect upon speed of light in denser medium. रेयर में स्पीड अपॉन डेंसर में स्पीड। अब ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? So less than 1. ग्रेटर देन 1। रेयर में स्पीड ज्यादा और डेंसर में स्पीड कम। रेयर Oh मीडियम, yes, yes. देखो वैसे याद रखो कि वैक्यूम में स्पीड मैक्सिमम होती है, तो जितना मीडियम डेंस होता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। तो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इट विल बी ग्रेटर देन 1। और कहीं पे ये लिखा मिल जाए, आप इसको क्या रीड करोगे? सॉरी, ये तो सेम चीज हो गई। डी म्यू आर लिखा हुआ है, व्हाट यू विल रीड इट? So refractive index of rarer medium with respect to denser medium. तो रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, इसको स्पीड के टर्म में लिखोगे तो स्पीड इन डेंसर अपॉन स्पीड इन रेयर। इस बार डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो ये 1 से कम होगा। तो डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा, और रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम। और हम इसको प्रिफर करते हैं हमेशा, हम प्रिफर करते हैं डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। देन अगला टर्म यहां पे होगा एब्सोल्यूट। यस, आस्किंग समथिंग। तो इसको प्रेफर क्यों करते हैं हम लोग? ज्यादातर तुम्हें जो दिया जाता है, तुमने 10th में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये है कि ज्यादा यूज में रहता है ये, इसलिए। दूसरा टर्म होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अभी तक तो था तुम्हारा सब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तब होगा जब फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम। अगर पहला मीडियम एयर या वैक्यूम हो जाएगा तो सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
जैसे ये है, ये कोई मीडियम है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, लेकिन इसको तो वैक्यूम होना ही होना है, वैक्यूम या एयर होना ही होना है। अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेफ्ट को मार्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तक हम लेफ्ट और राइट दोनों मार्क कर रहे थे, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। यहाँ पे लेफ्ट में तुम्हें कुछ भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि लेफ्ट जो पहला मीडियम है वो एयर या वैक्यूम होना ही होना है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलो, इधर का मीडियम वैक्यूम है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, इस रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम का लेना है। अगर तुम्हारा ग्लास है तो ग्लास हो जाएगा, वाटर है तो वाटर हो जाएगा। जैसे तुमने क्लास 10 में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, तो वो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ग्लास का वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? एब्सोल्यूट। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेफ्ट मेंशन ही नहीं कर रहा है वो कहे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये है, तो वो रिलेटिव हो गया। उसने केवल ग्लास का बोला एब्सोल्यूट हुआ, केवल वाटर का बोला एब्सोल्यूट हुआ। तो एब्सोल्यूट जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसकी